Hello students, welcome to your science class. We are enjoying our science classes. We are studying the chapter Nutrition in Animals. In our previous videos, we have seen the process of nutrition, then nutrition in small animals like amoeba, hydra, frogs, mosquito, housefly, butterfly and spider. Today we will see nutrition in human beings. In human being, digestive system is well developed. Here you see the digestive system of human beings. And in human being, all the 5 processes in nutrition, that are ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion, all the 5 process takes place one by one with proper functioning. Let's see which are the parts of human digestive system. Which organs are included in digestive system? First of all, mouth. Here you can see mouth. Then second one, salivary glands. These are situated in the mouth. And esophagus. This pipe is called as esophagus. It is also called as food pipe. Then stomach. Here you see stomach. Then small intestine, large intestine. Is outer coil is called large intestine, and in that outer coil there is a small coil. Yes, this one. This is small intestine. Then other parts are gallbladder. Here this green part you see, that is gallbladder. Liver, this triangular shaped part, this is liver. Then pancreas in stomach. Here you see small part, that is pancreas. This pancreas secretes some juices in the food. And then rectum and anus. These are the parts for digestion of food. Salivary glands, liver, pancreas and gallbladder. These are the organs that secrete digestive juices that help convert complex substances in food to simpler substances. ये जो organs है, ये 4 organs, इनमें से digestive juices secrete होते हैं जो digestion में help करते हैं. Digestion जल्दी से हो इसलिए वो digestive juices secrete करते हैं. और ये जो लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, इनके इनर वॉल से भी कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं. अब देखो न्यूट्रिशन में फर्स्ट प्रोसेस है इजेशन ऑफ फूड. टेक इन ऑफ फूड, टेक द फूड इनसाइड द बॉडी. इन ह्यूमन बीइंग they take food from mouth. Here you can see teeth, human teeth. In mouth there are set of teeth. This is permanent set of teeth of human. In this set there are 4 types of teeth, that are incisors, canines, premolars and molars. These 4 front teeth, they are called incisors. Then these 2
side teeth of incisor. Side teeth of incisor, they are canines. Then these four teeth, to this side and to this side, beside the canines. These four teeth, they are premolars, and beside the premolars, these three teeth, three from this side, three from this side. These six teeth are molars. A child has only 20 teeth, 10 in each jaw. These are known as milk teeth. They fall off by the age of 10. बच्चों में मिल्क टीथ होते हैं, जो बच्चों में 20 ही टीथ होते हैं, उन्हें मिल्क टीथ बोला जाता है. ये टीथ 10 to 12 ईयर तक फॉल ऑफ होते हैं और उनकी जगह पे दूसरे टीथ आते हैं जो होते हैं परमानेंट टीथ. दिस इज परमानेंट सेट ऑफ टीथ. ये जो सेट देख रहे हैं आप, ये परमानेंट टीथ का सेट है. यहाँ पे 32 teeth are present in permanent set, 16 in each jaw, in upper jaw and in lower jaw. 16 teeth. Here we can see 16 teeth, 4 incisors, 2 canines, 4 premolars and 6 molars. Totally 16 teeth. 16 teeth are present in each jaw. The front teeth are known as incisors. These are chisel shaped and are used for biting and cutting. Next to the incisor are canines. Next to the incisor are canines. These are pointed and are used for piercing and tearing pieces of food such as meat. मीट के जैसा हार्ड फूड ईट करने के लिए इस कैनिन का यूज होता है. अब आप बोलेंगे जो नॉन वेजिटेरियन है उनमें ही कैनिन का यूज होता है. ऐसा नहीं है, वेजिटेरियन में भी इस कैनिन का यूज होता है. वेजिटेरियन फूड में भी बहुत सारा हार्ड फूड होता है जो चू करने के लिए, टीयर करने के लिए हमें हेल्प लगती है. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको, गन्ना, शुगर केन हम जब ईट करते हैं तो ये कैनिन के हेल्प से ही हम उसे टीयर करते हैं. देन द टीथ एट द बैक ऑफ योर माउथ आर ब्रॉड with an almost flat surface. These crush and grind the food. These are called as premolars and molars. These 4 premolars and molars, they are very broad in size. Molars are larger than premolars. The white substance that covers our teeth is called as enamel. It is the hardest substance in the body. Yes, the saliva in mouth help to break down starch of the food into sugar that are easier to digest. It also makes food easier to swallow by making it wet and slippery. इस माउथ में जो सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, वो ग्लैंड से जो जूस सीक्रेट होता है, सलाइवा, वो फूड में मिक्स हो जाता है, जिससे कि फूड में जो स्टार्च है वो स्टार्च कन्वर्ट हो जाता है शुगर में. यस, और ये इजियर होता है डाइजेस्ट करने के लिए. इस माउथ में ये सलाइवरी ग्लैंड्स है. इस सलाइवरी ग्लैंड में से जूस सीक्रेट होता है. हम देखते हैं जब हम फूड ईट करते हैं, थोड़ा सा स्वीट टेस्ट, कैसा भी फूड हो, ये सलाइवा सीक्रेट होने के बाद हमें स्वीट टेस्ट लगता है, थोड़ा सा, स्लाइटली, एंड दैट इज बिकॉज द फूड इज गेटिंग कन्वर्टेड फ्रॉम स्टार्च टू sugar.
the function of our tongue. In our mouth, there is tongue. Here you see the picture of tongue. Tongue is a muscular organ that helps you to eat food. It pushes food towards your teeth. It also helps to mix the food with saliva and then enable to swallow it. हमारी जो टंग है वो टेस्ट को आइडेंटिफाई करती है और 5 टेस्ट को आइडेंटिफाई कर सकती है. कौन से 5 टेस्ट? स्वीट टेस्ट, सॉल्टी, sour and bitter. और सॉरी 4 टेस्ट ओनली. ये 4 टेस्ट पहले साइंटिस्ट क्या बोलते थे, ये 4 टेस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए टेस्ट बर्ड्स है अपने टंग के ऊपर जो डिफरेंट पार्ट्स में लोकेटेड है. यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो पार्ट है टिप ऑफ द टंग दैट आइडेंटिफाई स्वीट टेस्ट. ये पहले सोचा जाता था. देन ये साइड में जो देख रहे हैं आप दो, यहाँ पे सॉल्टी टेस्ट आइडेंटिफाई की जाती है. ये जो है इस साइड में यहाँ पे सोर टेस्ट आइडेंटिफाई की जाती है और ये लास्ट वाला जो टिप है यहाँ पे बिटर टेस्ट आइडेंटिफाई की जाती है. ऐसा साइंटिस्ट सोचते थे जो कि अब चेंज हो गया है. फर्दर इन्वेस्टिगेशन में ऐसा फाइंड आउट हुआ है कि ये टेस्ट बर्ड्स जो है सिर्फ इन प्लेसेस पे ही लोकेटेड नहीं है, वो ऑल ओवर टंग पे लोकेटेड है. ये टेस्ट, स्वीट टेस्ट, सॉल्टी टेस्ट, सोर टेस्ट एंड बिटर टेस्ट, ये अपने टंग पे कहीं पे भी आइडेंटिफाई होती है. कहीं पे भी ये जिस पार्टिकल का टच अपने टंग को हो जाता है वहाँ पे वो टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो उस टेस्ट को, वो कौन सी टेस्ट है, स्वीट है, सॉल्टी है, सोर है या बिटर है, वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं. So what is the functioning of tongue? Tongue identify the taste of food. Small taste buds are spread across its surface. Each taste bud can detect all the taste. Which taste? Sweet, salty, sour and bitter. What are the functions of tongue? There are mainly functions. First, it pushes food towards the teeth. Second, it helps to mix the food with saliva. Third, it enables to swallow the food. And fourth functioning is to identify the. अब ये तो हो गया ingestion of food. Now digestion. Digestion takes place in different parts. Firstly, digestion takes place in mouth. Then माउथ में क्या डाइजेशन होता है वो हमने देखा है. वहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड जो है वो सलाइवा सिक्रेट करते हैं फूड पे. वहाँ पे ही थोड़ा सा डाइजेशन हो जाता है फूड का. वो स्टार्च में से शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं. देन सेकंड डाइजेशन टेक्स प्लेस इन स्टमक. आफ्टर द फूड इज swallowed, इट स्लाइड डाउन द pharynx into यूसोफेगस. पैरिंग्स में से वो यूसोफेगस में फूड पाइप में वो फूड चला जाता है. द यूसोफेगस लीड्स फ्रॉम योर माउथ टू द स्टमक. ये यूसोफेगस कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे एंड होता है? स्टमक पे. यहाँ पे हम देखेंगे माउथ से ये यूसोफेगस स्टार्ट होता है. दिस ट्यूब इज कॉल्ड यूसोफेगस. माउथ से ये स्टार्ट होती है, ये स्टमक तक रीच करती है. It is made of muscles. These muscles gently push food down to your stomach in a wave-like action called peristalsis. ये जो यूसोफेगस है ये यूसोफेगस मसल्स से बना है और
इस मसल लाइक पार्ट से फूड स्टमक में जाता है, और ये जो गोइंग डाउन होता है, पुशिंग फूड डाउन होता है, ये वेव लाइक एक्शन होती है कि यूसोफेगस में से जो फूड स्टमक में एंटर करता है, यहाँ से जब वो फूड ट्रेवल करता है तो यहाँ पे वेव लाइक एक्शन होती है। इसे बोलते हैं पेरिस्टालसिस। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यूसोफेगस के पाइप्स हैं, यहाँ से ये फूड एंटर हुआ, यहाँ पे फूड का बल्क आया, तो ये यहाँ पे वेव लाइक मोशन दिख रही है आपको। ये वेव लाइक मोशन से ये फूड स्टमक में एंटर होता है। ये मोशन हमें कभी कभी अपने नेक में देखने को मिलती है। देखो आप कभी मिरर के सामने वाटर ड्रिंक करो और आपके गले की तरफ, आपके नेक की तरफ ध्यान दो, थ्रोट की तरफ, वहाँ पे आपको ये प्रोसेस, ये मोशन कैसे होती है ये दिखेगा। Actually, this movement takes place throughout the alimentary canal to push the food forward. Stomach is a J-shaped bag made of muscles. It can hold up 2 liters of food at a time. ये जो स्टमक होता है ये जे शेप्ड, देखो जे दिख रहा है आपको, जे, यस, ये जे शेप्ड बैग है, और ये बैग एट अ टाइम 2 लीटर फूड कंसिस्ट कर सकती है। एक टाइम में 2 लीटर फूड यहाँ पे बैठ सकता है। फूड स्टेज इन स्टमक फ्रॉम few minutes to few hours depending on the type of food eaten. हमने कैसे टाइप का फूड ईट किया है, उस फूड को डाइजेस्ट होने में कितना टाइम लगेगा, इसके डिपेंडिंग वो फूड कुछ मिनटों से कुछ आवर तक इस स्टमक में रहता है। अगर वेल डाइजेस्टेड फूड हमने ईट किया, मीन्स जूसेस में लिक्विड फूड होता है, तो वो कुछ मिनटों में ही स्टमक में से इंटेस्टाइन में एंटर करेगा। और हमने सॉलिड कॉम्प्लेक्स फूड अगर ईट किया जिसके डाइजेशन में टाइम लगता है, तो वो फूड यहाँ पे स्टमक में ज़्यादा देर रहेगा। The inner lining of stomach secrete mucus, hydrochloric acid and digestive juices. The mucus protect the inner lining of the stomach. The acid kills bacteria that enter along with food and also help in digestion of proteins. ये जो एसिड होता है, ये फूड के साथ जो बैक्टीरिया आता है, फूड में अगर कोई बैक्टीरिया डेवलप हुआ है और वो बैक्टीरिया फूड के साथ अपने बॉडी में एंटर करता है, तो उस बैक्टीरिया को ये एसिड जो स्टमक में होता है ये किल करता है एंड हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, और प्रोटीन के डाइजेशन में ये हेल्प करता है। द स्टमक मसल्स स्क्वीज एंड मिक्स द फूड विथ डाइजेस्टिव जूसेस। ये स्टमक के जो मसल्स होते हैं, यस, ये स्क्वीज करते हैं, स्क्वीजिंग एंड मिक्सिंग, फूड की स्क्वीजिंग एंड मिक्सिंग, जिसे डाइजेस्टिव जूसेस के साथ ये स्क्वीज एंड मिक्स करते हैं। द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, और ये डाइजेस्टिव जूसेस की वजह से प्रोटीन जो होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं और सिंपलर सब्सटेंस बन जाते हैं, और जिसे एब्जॉर्ब करना, बॉडी को एब्जॉर्ब करना ईजी हो जाता है। दस फूड गेट्स पार्टली डाइजेस्टेड इन स्टमक, then it goes into the small intestine where most of the digestion occur. तो माउथ में कुछ डाइजेशन होता है, देन माउथ से यूसोफेगस के थ्रू वो फूड एंटर करता है स्टमक में, और यहाँ पे कुछ देर तक उसका डाइजेशन होता है। लेकिन यहीं पे डाइजेशन खत्म हुआ है क्या?
नहीं। तो ये फूड सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हुए वाला फूड एंटर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और यहाँ पे होता है मेन डाइजेशन। इसमें क्या होता है देखो, as the food leaves your stomach, little by little it enters a long winding tube below it called small intestine. ये स्टमक देखो, ये पिंक वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये स्टमक, ये स्टमक की ओपनिंग गई स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन भी उसी कलर से है देखो जिस कलर से स्टमक है। तो फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। द लास्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेस हियर। द लास्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेस in small intestine. The muscles in small intestine mix food with more digestive juices. Some juices are secreted by the cells of small intestine itself. Others come from liver, which is the largest gland in the body, and pancreas, that is located just below the stomach. अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आता है, इस फूड को डाइजेस्ट करने में कौन हेल्प करता है? तो इस स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल से कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होते हैं, और कुछ डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो आते हैं लीवर से। ये जो लीवर दिख रहा है आपको, इस लीवर से वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होते हैं वो डाइजेस्टिव जूसेस। और कुछ डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो पैंक्रिया में से आते हैं। ये पैंक्रिया दिख रहा है आपको, स्टमक के बीच में ये व्हाइट वाला थोड़ा सा पार्ट, यहाँ से कुछ डाइजेस्टिव जूसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करते हैं और वहां पे होता है कंप्लीट डाइजेशन। द लीवर सीक्रेट्स बाइल जूस। लीवर ये सबसे बड़ी ग्लैंड है, यस, बॉडी में की लार्जेस्ट ग्लैंड दैट सीक्रेट्स डाइजेस्टिव जूसेस। यहाँ से बाइल जूस मिक्स होता है फूड में। यस, द लीवर सीक्रेट बाइल जूस विच इज स्टोर्ड इन बैल ग्लैडर। ये बाइल जूस जो बीटर होता है, टेस्ट में वो बीटर होता है, वो कहाँ पे होता है? इस गैल ब्लैडर में। ये ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है आपको, इस गैल ब्लैडर से वो बाइल जूस एंटर होता है इस स्मॉल इंटेस्टाइन में। द बाइल ब्रेक्स अप फैट्स into tiny droplets, then can be digested and absorbed more easily. Digestive juices then act on these tiny droplets to form simpler compounds known as fatty acids and glycerol. The pancreas secrete the pancreatic juice that changes starch into simpler sugar and proteins into simpler compounds called amino acids. अब क्या होता है, ये बाइल जूस जो है वो क्या डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है? तो ये फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। जो फैटी फूड हमने ईट किया है वो फैटी फूड सिंपलर कंपाउंड्स में यहाँ पे चेंज हो जाता है। सिंपलर कंपाउंड फैटी एसिड, फैटी एसिड में ये चेंज हो जाता है और उसका डाइजेशन होता है। देखो, हम जो फूड ईट करते हैं उसमें हम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं। तो उसमें से प्रोटीन जो है वो स्टमक में ही डाइजेस्ट हो जाता है, यस। और फैट को डाइजेस्ट होने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन तक आना पड़ता है, जिसकी डाइजेशन प्रोसेस लॉन्ग है। तो जिस फूड में फैट्स होते हैं, फैट्स ऑयली फूड, फैट्स कहाँ से मिलते हैं हमें? ऑयली फूड से। तो ये ऑयली फूड ब्रेक डाउन होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसीलिए ये फैटी फूड या फिर जंक फूड जहाँ पे ज़्यादा फैट्स होते हैं वो डाइजेस्ट होने में हमारे बॉडी को, हमारे डाइजेस्टिव
सिस्टम को बहुत ज़्यादा इफोर्ट करना पड़ता है, इसीलिए हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए। यस। The pancreas secrete the pancreatic juice that changes starch into simpler sugar। और जो स्टार्च अब बचा है, यहाँ पे माउथ में कुछ स्टार्च का शुगर में कन्वर्जन हुआ है, देन स्टमक में, और अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कुछ स्टार्च बचा है वो भी शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड प्रोटीन्स इनटू सिंपलर कंपाउंड्स। और प्रोटीन का सिंपलर कंपाउंड बन जाएगा, जिसे क्या बोलते हैं, अमाइनो एसिड। विच इज द सिंपलर कंपाउंड ऑफ प्रोटीन? अमाइनो एसिड इज द सिंपलर कंपाउंड ऑफ प्रोटीन। और यहाँ पे कंप्लीट हो गया डाइजेशन ऑफ फूड। जो सेकंड प्रोसेस थी न्यूट्रिशन की, डाइजेशन, वो कंप्लीट हो गई स्मॉल इंटेस्टाइन में। इंजेशन ऑफ फूड कहाँ से हुआ? माउथ से, और माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट हुआ, तो कंप्लीट हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब थर्ड प्रोसेस है न्यूट्रिशन की, थर्ड प्रोसेस क्या है? एब्जॉर्प्शन। वो हम देखेंगे। एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है देखा है हमने, जो डाइजेशन में जो न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं वो बॉडी में एब्जॉर्ब करने का वर्क एब्जॉर्प्शन का है, एब्जॉर्प्शन में है। तो ये ह्यूमन बॉडी में एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। द डाइजेस्टेड फूड is then absorbed by the small intestine. Absorption of food occurs through thousands of small finger-like projections in the inner walls of the small intestine. These projections known as villi. Single is called as villus, and if there are many villus, they are called as villi. Plural of villus. Increase the surface area of absorption of digested food. अब देखो क्या होता है, ये जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड ऑकर्स थ्रू थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। कहाँ से होता है ये एब्जॉर्प्शन? तो अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या बोला जाता है? विली। कितने होते हैं ये? थाउजेंड्स ऑफ। ये थाउजेंड्स ऑफ विली से ये जो न्यूट्रिएंट्स डाइजेशन में निकाले गए हैं, ये न्यूट्रिएंट्स ये एब्जॉर्ब किए जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसके थ्रू? विली के थ्रू, थ्रू विली। ईच विलस हैज अ नेटवर्क ऑफ फाइन ब्लड कैपिलरीज। और ये जो विलस है, वन है तो विलस बोलते हैं, ज्यादा है तो विली बोलते हैं। विलस, हर एक विलस को ब्लड कैपिलरीज अटैच होते हैं। जैसे ही ये विलस न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है, वो उस न्यूट्रिएंट को ब्लड कैपिलरी के ब्लड में मिक्स कर देता है। द फूड एब्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ द विलस passes into the blood in the capillaries. Yes, understand this process? यहाँ पे हम देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ विलस। ये इनर वॉल है, इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और यहाँ पे थाउजेंड ऑफ विली है। ये देखो, ये पूरे विलीज है। ये वन विलस, वन जो है विलस, ये ऐसे वाले बहुत सारे दिख रहे हैं यहाँ पे इस पार्ट में, तो ये है विली। ये थाउजेंड्स ऑफ विली क्या करते हैं, यहाँ से ये फूड पास होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की कैविटी है ये, यहाँ से वो फूड पास होता है। ये फूड पास होते समय इन छोटे छोटे विलस में वो फूड के न्यूट्रिएंट्स जो है एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और ये जो विलस की ओपनिंग है, ये यहाँ पे वो कैपिलरीज अटैच होते हैं। ये विलस फूड के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है और डायरेक्टली डाल देता है कहाँ पे? उस कैपिलरी में। उस कैपिलरी में क्या होता है?
यस ऑब्वियसली ब्लड, तो वो न्यूट्रिएंट चला जाता है ब्लड में। यहाँ पे कंप्लीट हो गया एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। देखा हमने, माउथ में इंजेक्शन ऑफ फूड, देन माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट होता है, माउथ में, स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में, तीनों जगह पे डाइजेशन थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और देन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, वो भी कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। द नेक्स्ट प्रोसेस इन न्यूट्रिशन इज एसिमिलेशन, मीन्स यूजिंग ऑफ दैट nutrients. The food absorbed into the blood is transported to different parts of the body. It is used to provide energy and materials for growth and repair the body tissues. This is the final stage in the process of digestion and is known as assimilation. Glucose is broken down in the cells with the help of oxygen into carbon dioxide and water to provide energy. Amino acids are used for building and repairing of body parts. Fatty acids and glycerol are stored under the skin and act as energy reserves. Yes, here we see glucose is broken down into cells with the help of oxygen into carbon dioxide and water. जो ग्लूकोज हम लेते हैं, ये ग्लूकोज कहाँ से मिलता है हमें? कार्बोहाइड्रेट में से। यस, कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज में, जिसे शुगर बोला जाता है। और ये शुगर जो है ये हेल्प करती है टू प्रोवाइड एनर्जी, इसीलिए हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट गिव अस एनर्जी। अब ये कार्बोहाइड्रेट डायरेक्टली हमें एनर्जी देते हैं क्या? नहीं, ये कार्बोहाइड्रेट्स जब हम ईट करते हैं, इसका डाइजेशन हो जाता है, ये कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज में और ये ग्लूकोज हमें देते हैं एनर्जी। यस, देन अमाइनो एसिड्स आर यूज्ड फॉर बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग बॉडी पार्ट्स। ये अमाइनो एसिड किससे मिलते हैं? ये सिंपलर कंपाउंड है, किससे मेक हुए वाला? प्रोटीन से मेक हुए वाला। यस, डाइजेशन में प्रोटीन जो है वो ब्रेक डाउन होता है सिंपलर कंपाउंड में। कौन से सिंपलर कंपाउंड में वो ब्रेक होता है? अमाइनो एसिड्स में। तो प्रोटीन का अमाइनो एसिड बन जाता है डाइजेशन में। यस, और ये अमाइनो एसिड हमारे बॉडी को हेल्प करता है सेल्स बिल्डिंग में, नए सेल्स बनाने में और बॉडी पार्ट्स को रिपेयर करने में। जो कि मैंने आपको बताया था, जब हमें इंजरी हो जाती है तो वो जो डैमेज हो जाता है अपने स्किन का, बॉडी पार्ट्स का, तो वो डैमेज रिपेयर करने के लिए ये अमाइनो एसिड्स हमें हेल्प करते हैं। ये अमाइनो एसिड किससे मिलते हैं? प्रोटीन से। इसीलिए हम बोलते हैं प्रोटीन आर बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। यस, देन फैटी एसिड्स। अब ये फैटी एसिड कहाँ से आते हैं? ये सिंपलर फॉर्म है फैट्स का। यस, फैट्स को कन्वर्ट किया जाता है फैटी एसिड में। डाइजेशन प्रोसेस में फैट को कन्वर्ट किया जाता है फैटी एसिड में। ये सब हमने देखा है कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है ये। तो ये फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल जो होते हैं वो स्टोर होते हैं अंडर द स्किन। स्किन के नीचे के साइड को ये फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल स्टोर होते हैं, जो एनर्जी रिजर्व करते हैं। जब भी हमें एनर्जी की नीड होती है तो ये फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल ब्रेक डाउन होते हैं ग्लूकोज में और हमें प्रोवाइड करते हैं एनर्जी। दिस इज द कंप्लीट assimilation, means